A very good morning to all the participants. I welcome you all to the second day of the online training program Sites and Safe Hill Area Development. On the first day of the training program, we had address by dignitaries, including Major General Manoj Kumar Bindal, Executive Director of NIDM, Sri Rajiv Rai, Uttarakhand Academy of Administration, and Professor Surya Prakash, Head GMRD Division, National Institute of Disaster Management. The technical session was taken by distinguished speakers, namely Professor Tilok Nath Singh and Professor Ajay Rawat. Today, on second day, we will be having four speakers who will share their expertise on early warning of hydrometeorological events, enhancing the sustainability of Himalayan ecosystem, Bhagirathi Valley flash flood case study, and national intervention on landslide risk reduction and resilience. The today's experts include Shri Anand Sharma, DDG Meteorology Head, RMC IMD, Dr. Rajendra Singh, also known as Waterman of India, Professor Surya Prakash, Head, GMRD and IDM, and myself. There are some information and instructions to the participants. Question and answer session will be after the presentation of all speakers. Participants who want to ask any query can share their query through question and answer forum. I also request all the participants to kindly avoid spamming question and answer forum with greetings. So the first presentation, I will be starting the first presentation. Uh, I am Anil Kathab, young professional associated with Center for Hill Area Development, Geometeorological Risk Management Division of National Institute of Disaster Management. Prior to NIDM, I have worked with some prestigious organizations such as UNDP, NIUA, and CRRI. I will be talking about national interventions on landslides, risk reduction, and resilience in the country. The safety of slopes and management of landslides have always been major concern, especially in the hilly region across the globe. Landslide not only pose threat to lives and environment, but also adversely influence the livelihood, normal activities, psychology of affected communities, beside huge economic losses by devastation of infrastructures and structures. It is always a big challenge for community to return to their status quo after the episode of any catastrophic landslides. The actual losses due to landslides are still the topic of debate, as in the role of secondary player after primary disasters like earthquake, floods, glacier lake outbursts, cloudbursts. Landslides are not given their due in number of deaths, socioeconomic losses, and constant in response, rescue, recovery phase of disaster management. For example, you can take example from Sikkim earthquake of 2011 and Gorkha earthquake of Nepal in 2015, where numerous landslides were initiated, some were regenerated, some were new ones that causes major damage to settlements, infrastructure, and also hampered the post-disaster activities. In awareness of the challenges posed by landslides for lives, economy, and development, laid down a number of interventions in the country. Prior site-specific quick fix approach was used in landslide management. But after the enactment of Disaster Management Act 2005 and other subsequent intervention, more holistic approach for prevention, mitigation, and preparedness were adopted. I will discuss of those interventions taken by Government of India. So, global decade of 90 declared as International Decade for Natural Disaster Reduction, and focus of the decade was mm, that all countries should have their disaster management plan at all level, at national level, at state level, and as well as at district level. In to international commitment, India in 1999 constituted High Power Committee for Disaster Management. The aim of the Constitution of High Power Committee was to provide a new conceptual framework to reduce the impact of disasters, uh,
The main focus of the committee was preparedness for prevention and reduction in addition to mitigation of disasters. The committee also highlighted that landslides are predictable and adverse impact posed by them can be minimized or even avoided with proper systematic holistic research work on landslides. In the report of High Power Committee that was circulated in 2001, uh, the priorities on the landslide hazard management they have given on landslide hazard identification to improve landslide mapping, assessment to identify the existing and potential failures, land use patterns, uh, control measures, development of reliable risk assessment besides sensitizing the community about the threat of landslides. This was also on, on to increase the R&D on prediction and forecasting of landslides. High Power Committee categorized the natural and man-made disaster into 5 categories, and they have kept landslide in geological related disasters. In relevancy, some of international framework like Yokohama Strategy Plan of 1994, Hugo Framework Action Plan of 2005, and, and some of the most severe natural calamities that India has faced during that decade, like Odisha super cyclone of 1999, Gujarat earthquake 2000, and Indian Ocean tsunami 2004. The Disaster Management Act was enacted on December 26, 2005. The Disaster Management Act was the major intervention in the history of country for effective disaster management. DM Act virtually revolutionized the entire approach towards management in India from a relief-centric to holistic, integrated, with emphasis on prevention, mitigation, and preparedness. The Act adopted many recommendations of Power Committee and formulated an institutional framework from the central to the local level through unified response mechanism and bestowing extensive power on the central government and other disaster management agencies. You can see the Disaster Management Act 2005 is divided into 11 chapters and are divided into 79 sections. Chapter 1 provides overview of Disaster Management Act, terminologies and other things. Chapter 2 mandated to constitution of National Disaster Management Authority. Chapter 2 also that what are the responsibilities of National Disaster Management Authority at national level. Likewise, chapter 3 mandated to constitution of the State Disaster Management Authority at state level. Chapter 4 constitution of Disaster Management Authority at district level. Likewise, every chapter has its own importance in constituting the present disaster management framework of the country. Like chapter 7 and sections 40 to 43 mandated to for the constitution of national disaster management, national disaster management for promoting and enhancing the capacity of stakeholders in managing the disaster. Chapter 8 is on formation of disaster response forces at national level and state disaster response forces at state level. Chapter 9 talks about financial system for disaster management in the country. For some financial management, national disaster response fund was established at
national level and state disaster response fund was established at state level. Further, in the year 2009, Disaster Management Authority released its guidelines on management of landslide and snow avalanche, apprehending the enormous destructive potential of landslides and the need to reduce the resultant losses of lives and economy. National Disaster Management Authority, Government of India in 2009 materialized national guidelines on management of landslides and snow avalanches. The incorporated time-bound regulatory, non-regulatory framework to institutionalize the landslide hazard mitigation effort, apart from enhancing the capacity of society to take appropriate measures to avoid or to reduce the risk and cost associated with the hazard, to address the challenges against the landslides, risk reduction and resilience. 9 major areas were acknowledged in that guidelines. These are the major elements that were discussed in the guidelines on management of landslides and snow avalanche in 2009. 2015 was also a remarkable in history of disaster management as at international platforms and I framework, sustainable development goals, and Paris Agreement were adopted. In coherence to these frameworks and agreements, and to carry forward the inheritance of Disaster Management Act 2005 and to further the current global practice at knowledge across the globe. NDMA released its National Disaster Management Plan of the country in 2016. The Disaster Management Plan provide a framework and direction to all the government departments, agencies at national level as as well as at state level for all phases of disaster management, preparedness, mitigation, response, recovery. Uh, the disaster management plan of 2016 was first national plan line with the Sendai framework, and this plan was again revised in 2019, integrating the Sendai framework for disaster risk reduction, Paris Agreement, sustainable development goals, as well as 10-point agenda on DRR from Honorable Prime Minister. Again, in year 2019, NDMA released its National Landslide Risk Management Strategies during its 15th Formation Day on 27 September 2019. Uh, address the all challenges of landslide at national as well as local level, NDMA formulated document that also accomplished the fifth target of Sendai framework, that was substantially increase the number of countries with national as well as local disaster risk reduction strategies by 2020. The document laid recommendation on major components of landslide disaster risk, and these components were landslide hazard mapping, monitoring and early warning system, awareness generation programs for enhancing the capacity of local communities on regulation, and mitigation of and mitigation creation of a special purpose vehicle for landslide management. Some of the recommendation that were laid by the cities document was to produce maps at macro and meso scales to foster the research for development of early warning system based on rainfall, threshold, earthquake-induced landslides, and wireless sensors. The document also emphasized to promote the culture and preparedness by involving and educating the local communities, especially youth, about the landslide management as well as other hazards of their respective areas.
document also highlights codes, standards, guidelines for landslide management, and to update building regulation bylaws by state governments and local bodies. The document also a special recommendation that was also highlighted in High Power Committee report in 2001 and establish a national level center dedicated only for landslide research and management. These are the major components of the strategy document. What initiatives were taken by the government on the interventions? GSI is working on the landslides research since 1880, and GSI is declared as a nodal agency for landslide assessment in the country in Jan 29, 2004. A technical advisory committee was also established for landslide mitigation management to foster landslide-related R&D in the field of mapping, monitoring, capacity enhancement, and the committee was constituted year 2014. GSI also launched a national landslide susceptibility mapping program to cover landslide-prone areas of country to create a dynamic national database, GIS-based seamless landslide susceptibility maps, and a nationwide disparity on GIS-based landslide inventory. Apart from this, Bureau of India standards publish a number of codes, guidelines related to landslide hazard zonation, mapping, design, construction of various retaining walls, landslide control, selection of material for residential buildings in hill areas, as well as National Building Code 2016. Apart from BIS, Indian Road Congress have also formulated a number of guidelines on management of landslide, especially on hilly roads. National Institute of Disaster Management also developed training module on comprehensive landslide risk management, besides face-to-face training and online training program on landslide risk reduction and resilience. And IDMO also organized international conference on landslide risk reduction in 2019, and we are hoping to, and we are looking to organize a webinar on landslide risk reduction and resilience on 18th of this month. Thank you. That's all from my side. Now for the second presentation of the day, I will request Sri Anand Sharma, DDP Meteorology Head, RMC IMD. His main interest area of interest were weather prediction, crop weather simulation, agro advisories, mountain meteorology, early warning of extreme weather systems, and disaster management, environmental awareness. He has been a life member of many professional societies such as Indian Meteorological Society, Indian Society for Remote Sensing, Indian Association of Agro-Meteorologists, and Indian Institute of Ecology. Sri Sharma has also been bestowed upon with many awards and honors, notably among them are MOS Award for Excellence in Atmospheric Science, Best Meteorological Center, Hutko Award for Best Practices in Early Warning, and so on. Over to you, sir. Thank you, Anil, for the nice introduction. And I want this to be very, very simple. In fact, I wanted this presentation to be interactive, but because of your schedule, we will take the questions at the end. Okay, the topic, as I understand, is it's about hydrometeorological hazards, especially in the mountains, which lead to lots of losses. As we all know, mountains are a very complex system. Mountains are fragile, remote, and marginal. So this, along with the complex topography, because of valleys and mountains, you have a very complex topography where data gaps are in plenty,
combined with high climate variability. And in addition to that, we also have added pressure of little bit climate change. So you have a complex topography, very high climate variability, climate change, and on top of that, typical hydrometeorological hazards, which are landslide and your heavy rainfall leading to flash floods. These hazards are, we put them in the category of sudden onset hazards. So you can imagine it doesn't give you time. These ones fall under the category of sudden onset hazards. So you can understand how complex it is and how difficult, how challenging is it to predict these kind of systems. आप समझ सकते हैं इसको कितना मुश्किल होगा इन सिस्टम को जहाँ की मतलब कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है, एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है और रिमोट है. अब बात करते हैं क्या अर्ली वार्निंग जो है इन सिस्टम से की जा सकती है. यस, अर्ली वार्निंग can be done, but remember early warning system for landslide and flash flood, which is whichever is there wherever in the world, it is comparatively less developed and are not yet mature as compared to other kinds of early warning systems, say for the cyclone, for the other tornadoes. They are much more developed because there is a system in place, but here this is still in the comparatively less developed and are not yet very mature. So you can understand the challenges in front of us. Now coming to the main feature which leads to these kinds of hazards, it's the rainfall and associated runoff. So we know again the mountains, heavy rainfall and very heavy rainfall, especially in the monsoon season and sometimes extremely heavy rain, is a typical feature of Himalayan mountains about which we are discussing. So there, 5 centimeter rainfall in an hour, it does happen number of times, and whenever it happens, it creates problem. And then sometimes we also get rainfall of the order of 10 centimeter in an hour. That we put under the category called cloudburst. So basically, cloudburst is a phenomena of very high intensity rainfall in a short period of time, falling in a very small area. यानी कि बहुत थोड़े से समय में बहुत ज्यादा बारिश का होना एक थोड़े से एरिया में, और वो भी कैसा जो फ्रेजाइल है. If the heavy rain falls, intense precipitation falls, it induces a landslide and it induces flash floods leading to losses. So this has been happening, and it's a very common feature of the mountains. Now question is, what is our aim here? Our aim here is to reduce the impact of hydrometeorological hazards in the mountains. Is it possible? My question is it possible? So the answer is yes and also no. Yes, when we have a very well-defined weather systems, like for the example in the case of Kedarnath disaster, where we have an interaction of a westerly and easterly system. We know this kind of system very well understood, and it can be predicted in advance. It is possible. But no, when I said no, no means, we say in some of the systems which we put under a mesoscale systems, which develop from nowhere within minutes or seconds. So these kind of systems are very difficult to capture especially if you do not have observing systems, say for example radar. So it becomes very difficult, and by the time satellite gives you some indication, the system's life cycle is so short, thunderstorm has a short life cycle. By the time you spot it there and try to monitor and predict, you have left with very less kind of time to communicate the information to the planets and uncommon masses. So we do not have that kind of system in the mountains yet. So that is why I said no. So in certain situations, it becomes very difficult. In a remote area, suddenly a cumulonimbus cloud forms in the afternoon and gives you an intense shower of the order of 10 centimeter or even 6 or 7 centimeter. That is also good enough to induce flash flood and landslide. So we are not able to capture it sometimes. So that we need to understand. It is very challenging, and because of data gaps, observational gaps, we have certain constraints.
But nonetheless, early warning can reduce losses. And early warning, as we know, I mean, if with this early warning, with a sufficient warning time, we can reduce the losses. But we also need to understand that all the early, I mean, weather systems or hazards cannot have the similar kind of warning. Like for the example, in the case of cyclones, we can give you warning 4 days to even a 1 week in advance. That is, cyclone low pressure system is forming in the Bay of Bengal, and it will further strengthen into a very well marked low pressure area, depression, deep depression, and ultimately cyclone or a severe cyclone. So that we have an excellent system in place, early warning, and it can be done well in advance. But there are systems like tornado, only few minutes in, I mean, maybe 15, 20 minutes only you have at your disposal to pinpoint where exactly a tornado is going to hit. Similarly, for the earthquake, you have only few seconds only, if at all, you have a state-of-the-art early warning system where between E and S wave, you can get some time and you can inform the people. Again, tsunami has very less time available with you. So it depends which kind of system you are trying to predict. But as I said, we are predicting hydrometeorological hazards, the cloud burst kind of phenomena. You get very, very less warning time. That one needs to understand. Then this early warning system has 4 components. The first component is risk knowledge or risk assessment. That means whichever area you are there, you should have a fairly good risk assessment of your area. Are you near to the river which gets inundated due to flash flood or normal flood? And or if you are in a mountain area, are the mountains very fragile and prone to landslides? So you should have the risk knowledge, risk kind of assessment of your area from time to time, knowing that, and then you can avoid that. And if you know that, I mean, it helps you. The second component of early warning is monitoring and prediction. Again, remember, all these 4 components are not done by a single person. They are done by different agencies and organizations. The second component is your monitoring and prediction. And monitoring and prediction is as far as weather is concerned, and India Meteorological Department is the agency which does that. And I mean, we are continuously improving, and forecast accuracy and warning accuracy has tremendously increased over the years. And you know, we have the data, we collect the data, we plot the data, we analyze the data, and after that we come out with know where the weather system lies, depending on the synoptic situation analysis. And then the systems are monitored, and knowing that which direction system is moving and how strong is it, we can predict its behavior or predict the rainfall or its after effects. So that is done by India Meteorological Department, and there is a continuously we are improving. And third component of early warning is dissemination of information. That means whatever weather forecast we are generating, it should be disseminated on real-time basis. Because if weather forecast is kept written in the register and is not disseminated, it's incomplete. It has to disseminate to the end users. So that's what we say in weather, in atmospheric sciences or meteorology, on real-time basis. So weather forecast and data doesn't have a shelf life. You cannot keep it and use it later. Immediately it has to be transmitted and from producer to the user. So timely dissemination information is very, very important. This is the third component. And the fourth component is the response, where coordination, good government, appropriate action comes into picture. So these are the 4 components. Again, response is done by the state governments and the state disaster management authorities and the district authorities. So they are done. So as you see, there are 4 components, and they are done by different agencies. In some places, even communication is not fully in the hand of Met Department. There are many other private channels and TVs and other things, agencies, which also come into play. So these are 4. But then remember, these 4, there has to be excellent coordination between these 4 agencies, or whatever 4 components. The failure of any part of the system will imply failure of the whole system. This is the most important. So we will learn it. I mean, what I mean with this. So here, as you must be knowing, about 2013, we had Kedarnath disaster, where there was heavy to very, I mean, even extremely heavy rainfall, starting from around 14th of June 2013, and 15th onward it increased, and main impact came on 16th and 17th of June.
leading to flash flood, landslide, and loss of life and property. It was a very major disaster of Uttarakhand, where I think thousands of people were missing and lost their lives. So that kind of system, especially I was the director of Meteorological Center, Dehradun at that time, and we had predicted well in advance, about 3 to 4 days. We gave the timely warnings to the state disaster management authorities, secondary disaster management authorities, to the government, saying that heavy to very heavy rain is likely, and we have also pinpointed the place. And another important thing was consistently we were giving this forecast and upgrading it also. So there was no sort of, like one day we are giving rain, other day we are removing it. No, consistently it was given from 14th onwards, especially. And we said that heavy to very heavy, and not only this, we also added the impact component. That means what impact this is going to have. We said there are going to be landslide, and there was advisories. We also said that people who are moving into the mountains are going for the Char Dham Yatra. We requested the government that please postpone Char Dham Yatra by 4 days, as we are expecting heavy to very heavy and extremely heavy rainfall, along with the landslide. And actually, when this kind of heavy, very heavy rainfall occurs in the mountains, it leads to flash floods. So with this in mind, we had told them to postpone Char Dham Yatra, and we also said people who are in the plains that should not venture into the mountains, and people who are in the mountains should immediately move to the safer places. So all this was very clear-cut instructions, because a very important component of weather forecast terminology and its dissemination is that it should be very simple. It should not be ambiguous, so that people do not know what to do. And it should be actionable. That means people should, after seeing the forecast and its warning, they should know what to do. So I think all those components were very, very clearly defined on that, and was given to the to the government well on time. And it was in the newspaper, it was in the television. But now people will ask me, then why so many people lost their lives? So this is the question. That means the 4 component I was mentioning above there, that means one of the component failed. So which was that component? So that component we need to, everybody knows now. Somebody, who has to act and stop people, it did not happen. So what we can say is that, actions on the ground were not sufficient. Forecast was there, warning was there, so there was a gap. So there was a gap between the forecast, warning, and action on the ground. And we always say that early warning without early action has no meaning. So this is just early warning without early action has no meaning. So this component was missing. So there are many lessons to be learned from that particular disaster. But I don't know whether people have learned any lessons. And I think that also should be shared here somewhere. And if at all they are learned, what are those lessons? But nonetheless, what we should do, how we should ensure that we have the better early warning system, and it is effective as well. So for this, I think we need to do many things. As I said, first one is that gap, that we need to fill the gap between the forecasting warning agencies and the agencies which has to take action on the ground. And maybe if need be, there can be a new group of persons in between who understands our forecast, and then again, in a very simple manner, further seeing the ground realities, communicates it to the general masses of the people. So that will be one good thing. A second, closing the gap requires comprehensive approach to improve observation. As I said, in the mountains, we had data gaps. So we have to strengthen the observatory network, especially above 3,500 meters, where we have very less number of observatories. One. Second is modeling. We have to have valley specific models. So because each valleys in the mountains have its own behavior and typical features. So we have to have mesoscale valley specific models. And then naturally prediction. And in the prediction also, experience is the one component which matters a lot. So that means what I'm talking about is capacity building. So we have to build the capacity of the national meteorological hydrological agencies, where I also belong to that. We need to do that. And then we need to develop
end-to-end systems, where end-to-end system is right from observation, analysis, modeling, prediction, communication. So all this should be end-to-end system. So that is going to help a lot. And predictions are not useful unless they are translated into a warning and action plan that public can understand, and it should reach them on time. So this we have to ensure. So here the problems comes of the communication. Communication becomes a problem in the mountains, especially when you heavy rain or very heavy rain is there. So at that moment, what happens? Your communication system fails. That means there is no electricity. If there's no electricity, how will you get information through your television and radio? That is one. A newspaper as such, and the mountain reaches very late. Internet get disturbed. So under such kind of system, how will you ensure communication? So we have to have a fail-safe communication system under these kind of what we call as extreme conditions. So this is very, very important. And one simple thing could be in this regard could be your hand winding tone alert FM community radio. It's a very simple. These days we have radios which doesn't require electricity, doesn't require battery. It has a handle behind it. If you wind it for 60 times, it runs for 1 hour. So small community radios is the need of the hour, especially in the complex environment of the mountains. Already quite a number of them in Mussoorie or maybe in Kumaon, higher in the mountains, in the Kedarnath Valley and nearby valleys, some radios have come up. So more such kind of radios are required which our dissemination of information. So that should be very, very important thing for us. And then strengthening coordination between meteorological, hydrological, and disaster management authorities. Again, remember, weather forecasting is a mandate of India Meteorological Department, but flood comes under the category of Central Water Commission. And flash flood is a gray area which was not taken by anybody. However, India Meteorological Department has taken a new initiative, and we have developed a flash flood guidance system. It's again, just started. We are learning, and I think already a seminar has been organized on this topic by Surya Prakash ji and NIDM. So I won't talk much about that, but yes, the system is not yet mature. It will take time to mature. So what I was saying is a strengthening coordination between meteorological, hydrological, and disaster management authority. That's very, very important for good governance. The next step is prioritization. See, you have to find out your priorities. A new risk vulnerability map is required. Risk or vulnerability map is required. As you know, in the mountains, vulnerability is increasing. Why vulnerability is increasing? Because more and more people are constructing and living in the hazard-prone areas, be it a floodplain, be it a landslide-prone area. So more and more people are constructing and living. So I think you need a new risk map. This will help the disaster management managers to concentrate in terms of repositioning, education, and simulation exercises. So prioritization is very, very important thing for the early warning and reduction of the risks. Then another important thing is, as I said, more and more people are living and constructing in the vulnerable areas. So checking and stopping of unplanned and haphazard building construction in floodplain and landslide. I don't know whether it's happening, as many people tell me, which all those areas which were washed by the Kedarnath floods, again the construction has come up in those areas, because people think such kind of events happen once in 100 years. So maybe in next few years they are not going to get affected. So, but it's not like that. We don't know the frequency and real intensity of such system. It can happen anytime. So only thing is we should be better prepared, and we should avoid construction in these kind of areas. And then again, it's capacity building, second component. One is of hydrometeorological and meteorological service. Second is the capacity building at the local communities, which is very, very important. If local communities do not know how to respond, how to react, so then again it will make them more and more vulnerable. So capacity building at the local community level is also very, very important. And finally, feedback. Feedback is very, very important, because as I said, it's a challenging task to give the weather forecast and warning. So it's not that we will be 100% correct. There are chances of going wrong, as well as false alarms could be also there.
But then people, when they give us feedback, we know from our feedback that what needs to be done, and we can address our failures and gaps, and it will help us in developing from end-to-end systems for early warning. So in the end, I will just say early warning of hydrometeorological disasters is a great challenge for the mountains, as because these systems are sudden onset hazards, so difficult to capture all the times. Thank you very much, and if there are questions, you're most welcome. Thank you very much, sir, for your informative presentation. Now our next speaker is Dr. Rajendra Singh. He is also known as Waterman of India. He won the Magsaysay Award in 2001 and Stockholm Water Prize in 2015. He runs an NGO called Tarun Bharat Singh Sangh, starting from a single village in 1985. Over the years, Tarun Bharat Sangh helped build over 8,600 water conservation structures to collect rainwater for the dry season. Dr. Singh is also heading a national network of organizations working on water issues. This network is working for restoration of all mighty and small rivers of the country. Today is also a special day as the Waterman of India was born on 6 August 1959. On behalf of National Institute of Disaster Management, Uttarakhand Academy of Administration, I wish you a very happy birthday. You are indeed a true inspiration, and we are grateful that you agreed to be with us today. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच। मैंने पार्टली श्री आनंद शर्मा जी को सुना, अच्छा लगा। मैं जानता हूं कि आपका इंस्टीट्यूट आपदाओं से सक्रिय रहता है, लेकिन इस वक्त इस 21वीं शताब्दी की जो आपदाएं हैं वो अब से पहले की आपदाओं से अलग है। ये जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो लोकल है। हमने पिछले 37 वर्षों में 10,800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जहां डेवलपमेंट का डिजास्टर था, डेवलपमेंट का डिजास्टर जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो भी हुआ उसने वहां के अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को ओवरड्राफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें नेचर को मैक्सिमम यूज करने के लिए उसकी एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन की पूरी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, और उस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ने हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट कर दिए और धरती पर हरियाली बची नहीं, ना मिट्टी में न, तो पूरा एरिया डिस्प्लेस हो गया, बेपानी हो गया। जब लोगों ने अपनी धरती को दोबारा से हरा भरा करने का काम शुरू किया तो 15 साल के काम की मेहनत के बाद परिवर्तन दिखने लगा, धरती पर हरियाली बढ़ने लगी। और उस हरियाली ने, वो प्रेजेंटेशन दिखाओ, उस हरियाली ने जिस तरह से जो जलवायु परिवर्तन का संकट था, उस जलवायु परिवर्तन के संकट को बदलना शुरू किया। पहले हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज हुए और फिर एक्यूफर रिचार्ज होने के बाद रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि जब कुओं में पानी आया तो जो नौजवान लोग गांव छोड़ के चले गए थे वो वापस गांव में आके खेती करने लगे। तो मित्रों, मैं जानता हूं कि हिमालय जहां पर स्टीप स्लोप्स हैं और वहां की जो मिट्टी और बनावट और पहाड़ियां बहुत फर्जाइल हैं, लेकिन अरावली जो कि एक पुराना पर्वत है, मैं अरावली के पर्वत श्रृंखला में काम करता हूं, तो मैं आज आपको अपना अरावली का जो अरावली हिल सिस्टम है उसका अनुभव पहले शेयर करूंगा। मित्रों, हमारा जो
आज का सिनेरियो है उसका रिश्ता केवल हमारे देश से नहीं है, वो ग्लोबल है। और ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त स्केर्सिटी एंड फ्लड के कारण डिस्प्लेस हो रही है और लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए दुनिया के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके अंदर ज्यादा एंगरनेस दिख रही है और वो जो एंगरनेस है वो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट दोनों मिलकर उनको इग्नोर करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट को, क्योंकि कॉरपोरेट का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉल्यूशन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड एनक्रोचमेंट ऑन कॉमन प्रॉपर्टी, ये जो तीन बड़ी थ्रेट्स हमारे कॉरपोरेट्स में समाई हुई हैं, उनके कारण हमारी गवर्नमेंट सॉफ्टली उनकी तरफ जरा ज्यादा नजरें रखती है और कॉरपोरेट की बातें ज्यादा सुनती है। इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट की एंगरनेस बढ़ती जाती है और ये जो एंगरनेस है, इस एंगरनेस के कारण एक तरह से जो समाज सफिशिएंटली सस्टेनेबली अपनी लाइफ को जीने के शुरुआत कर सके, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती, वो बस अनसस्टेनेबल स्टाइल में अपना जीवन जीते हैं। ये जो कॉन्सिक्वेंस हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट और एक तरह से कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के बीच जो कैपिटल मार्केट का जो नेटवर्क है, जिसमें प्रॉफिट, जिसमें केवल इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में शामिल होने की चाह है, इस मिसमैच रिजल्ट जो है वो पॉल्यूशन और एक्सप्लोइटेशन एंड एक तरह से एक्सप्लोइटेशन और पॉल्यूशन और एनक्रोचमेंट के कारण वेरियस सोशल टेंशन बढ़ रहे हैं। इसमें फोर्स्ड माइग्रेशन बढ़ रहा है। एशियन कंट्री जब यूरोप में है तो यूरोपियन उनको कहते हैं कि ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आ गए हैं। क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर एक अलग तरह टेंशन क्रिएट होती है। दोस्तों, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका रहा है, टेंशन हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतना और ये वाटर सेंस बार बार देने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि इंडिया फॉर्चुनेट है कि कम से कम इंडियन जब यूरोप में जाते हैं, लेकिन अब इंडियंस के बारे में भी ये बात कही जाने लगेगी क्योंकि इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो अब बढ़ता जा रहा है। रिफ्यूजी हैं, कैरेक्टर भी वैसा होगा। अभी तक ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और यदि वैसे भी सोशल साइंटिस्ट और जो अलग लोग जाते थे वो वहां टैक्स देके वहां की सरकारों की इनकम, लेकिन अब यदि कोई लाचार, बेकार, बीमार होके जाएगा तो ये जो परिस्थिति अभी बन रही है वो इंडिया के लिए बहुत भयानक है। फॉर्चुनेटली अभी ये माइग्रेशन में केवल शहरों, गांव से शहरों तक आता है। अभी ये शहरों से विदेश नहीं जाता, विदेश तो वॉलंटरी माइग्रेशन जाता है जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है। फोर्स्ड माइग्रेशन अभी इंडिया में नहीं है। अब ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो हमारा बदलता जा रहा है। यदि हम समय रहते हुए इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें इथिक है और जस्टिस है और जो नेचुरल रिसोर्स पर हमारी
नेचुरल रिसोर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हमारा लव अफेक्शन चाहिए, उसको हमें करना होगा। यदि वो नहीं हुई तो ये देश जो ग्लोबल टीचर था, दुनिया का गुरु था, ये दुनिया का गुरु तभी तक था जब तक इंडिया नीर नारी और नदी, वाटर, नेचर और रिवर, रिवर मीन्स फ्लो, फ्लो ऑफ लाइफ, ये जो फ्लो है और ये जो हमारी लाइफ और जो हमारी क्रिएटर है नेचर, इस सब का रेस्पेक्ट हम करते थे, आज का रेस्पेक्ट भूल गए और हम आजकल अपने भगवान को भी भूल गए हैं। है भय से भूमि, जैसे गगन, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो पंच महाभूत है, इनको हम अपना निर्माता मानते, हम ये मानते हैं कि हमारा निर्माण करने वाले ये 5 एलिमेंट हैं, इसलिए हमारा भगवान, इनके साथ भी हमारा रिश्ता टूट गया है। जब से हमारा ये रिश्ता टूटा है, तब से इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट दिखने लगी है। इसलिए मानता हूं कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल थ्रेट है, लेकिन सॉल्यूशन लोकल है। जैसे हमने किया हमारे इलाके में, हमने पिछले 37 वर्षों में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों तरह के करके रिवर्स माइग्रेशन का काम किया। इसलिए इंडिया को चाहिए ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। यदि इंडिया डिजास्टर फ्री कंट्री बनना चाहता है, तो इंडिया का डिजास्टर फ्री कंट्री बनने का एक ही तरीका कि इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपने आप को एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से, रिसोर्स के साथ रेस्पेक्टफुली व्यवहार करे, उनकी मैनेजमेंट करे, तो हम आगे जा सकते हैं। दोस्तों, 17 स्टेट, 365 डिस्ट्रिक्ट इस साल वाटर स्केर्सिटी और ड्राउट को झेला। बिहार, उड़ीसा, देश भर में बहुत सारी जगह की क्राइसिस है, ये आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं, जो हमारा पहले रिचार्ज और डिस्चार्ज का संतुलन था, वो रिचार्ज और डिस्चार्ज का संतुलन बिगड़ गया। आज हम डिस्चार्ज करने पर लगे हैं और रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो जब जब हम डिस्चार्ज बढ़ाते हैं और रिचार्ज घटाते हैं, तब तब ये क्राइसिस होती है। हम एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस एरिया में जी रहे हैं। यदि हम ये देखें कि हमारे असली रिजर्व बैंक अंडरग्राउंड एक्यूफर हैं। हमारा आरबीआई तो हमारी इंडियन करेंसी को प्रोटेक्ट करता है, उसको रेस्पेक्ट दिलाता है ग्लोबली, बट रियल आरबीआई हमारा अंडरग्राउंड एक्यूफर है। वो ओवरड्राफ्ट होगा तो फ्लड भी आएंगे और ड्राउट भी होगा, क्योंकि फ्लड वहां आता है जहां ऊपर से बारिश के पानी के साथ सॉइल आके इरोजन करके नदी के लेवल को ऊपर उठा देती है, और ड्राउट वहां आता है जहां से वो मिट्टी कट के आ जाती है, क्योंकि वहां मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रहता, ग्रीनरी नहीं रहती। तो ये जो ड्राउट और फ्लड है, इन दोनों का ट्रीटमेंट हमें यदि समय रहते नहीं किया, तो ये जो क्लाइमेट चेंज की थ्रेट है, ये बढ़ती जाएगी। इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया? हमने अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को, हमारे अरावली में 2 तरह के एक्यूफर हैं, एक कन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स हैं, दूसरे वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं। हमारी रिवर बेसिन में हमने उनको आइडेंटिफाई करके ऐसी जगह अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज करने का काम किया, जिससे हमारा एवोपरेशन लॉस कंट्रोल हो गया।
राजस्थान में हाई एवोपरेशन लॉस होता है, इसलिए हमने हाई एवोपरेशन लॉस को रोकने के लिए हमारे जो अंडरग्राउंड एक्यूफर थे उनको हमने रिचार्ज करने का काम किया। हमारी नदी में 6 तरह के एक्यूफर होते हैं, 6 तरह के एक्यूफर हैं एक बेसिन में। इनका जो करेक्टर है उसको जानकर हमने पानी किया। इस सारे काम में हमने सिविल सोसाइटी को सारे डिसीजन, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो साइट सिलेक्शन था वो इतनी अच्छी जगह हुआ कि जहां स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, जहां जेंटिल स्लोप थे वहां कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाई, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव, जहां जेंटिल स्लोप था वहां स्ट्रेट, और जहां स्टीप थी वहां कॉन्वेक्स। उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे कुएं थे, ड्राई वेल्स, 2.5 लाख कुएं 19 जिलों में हमारे 11,800 वाटर बॉडीज ने रिचार्ज किया। ये 11,800 वाटर बॉडीज हमने 37 साल में बनाई, लेकिन ये सब रिचार्जिंग स्ट्रक्चर की तरह अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज करने लगी। काम शुरू किया था, 80 फीट गहरा था, सूखा था, आज 5 फीट पर इसमें पानी है। तो 2.5 लाख कुएं हमने 37 सालों में रिचार्ज किए। जो नदी का मरना और सूखना है, जो क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर है, उसको यदि हमें ठीक करना है तो इस तरह से करना होगा। ये हमारी अरवरी रिवर है। ऊपर की स्लाइड आप देखेंगे, जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त 20 फरवरी 1985 की है। नीचे वाली स्लाइड 20 फरवरी सन 2000 की है। 15 साल के बाद क्या इम्पैक्ट है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहाड़ कैसे हरा हुआ, नदी कैसे पेरेनियल हुई, और बैरन लैंड में कैसे खेती होने लगी। जहां से ये महिला और पुरुष जा रहे हैं, ये रिवर है जहां नदी का उद्गम है। वहां से लोग उस जमाने में अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ जाते थे। आज शहरों से लोग गांव आके अपना पानी का काम करते हैं। ये उसी नदी का नीचे का हिस्सा है। जब हमने काम शुरू किया था, ये जो रेड सर्कल है, इसमें आप यहाँ पर ये वाटर बॉडी, इस रिवर में हमने 670 वाटर बॉडीज क्रिएट की। उसका परिणाम है वो इंक्रीज हुई, हरियाली बढ़ी और रिचार्ज बढ़ा, जिसके विजुअली देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन, कैसे जो मरी सूखी नदी थी अब वो पेरिनियल होकर बहने लगी। पीछे क्यों गए? आ जाओ दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने हमारे काम का इम्पैक्ट स्टडी किया था। उनका कहना है कि वर्ष और 2014 में सेम साइट डिफरेंस है। अब ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये ग्रीनरी इंक्रीज हुई है। इस रिपोर्ट का रिजल्ट ये है कि इमेंस इंक्रीज वेजिटेशन इज क्लियरली इन द रीजन। दोस्तों, जब आपको बुखार चढ़ता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, रेस्ट करते हैं और पानी की पट्टी रखते हैं। जब धरती को बुखार चढ़ता है तो धरती को पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतरता, उसका बुखार हरियाली से उतरता है, उसका बुखार मिट्टी के मॉइस्चर से उतरता है, उसका पॉल्यूशन फ्री स्ट्रीम्स फ्लो करने लगे हैं उसके इलाके में का काम किया, अपनी हरियाली। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिमोट सेंसिंग का बात बोल रहा है। हरियाली बढ़ने के कारण ये बड़ा परिवर्तन हुआ। मोटे तौर पर जो हमने वो एक गांव, एक विलेज लेवल से शुरू हुआ और फिर विलेज से लेकर रिवर बेसिन लेवल पर इंस्टीट्यूशन बने, रिवर पार्लियामेंट बनी, रिवर रिजुनेशन हुई,
और हमने जो काम किया वो समाज को मोबिलाइज करके नेचर को रिजुनेट करने का काम किया। हमने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक किया, इरोजन और सिल्टिंग रोक दी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया और स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर उसकी कंटिन्यूअसली वाटर को श्रेय उन्हीं को देता हूं। दोस्तों, जब हमारा काम नहीं हुआ था तब ये औरतें 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती थी। 18 किलोमीटर होता है इनका आना जाना। आप समझ सकते हैं कि एक वुमेन की लाइफ में कितनी ड्रेस अभी 5 मिनट में पानी लेके आ जाती है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। ये हमारा एरिया था जिस एरिया में अब हरियाली दिखती है और लोग फूलों की खेती करते हैं, सब्जियां करते हैं। एक जमाना था जब हम दिल्ली और जयपुर के ट्रांस ऑपरेटर कंपनियों के लिए काम करते थे। अब जमाना है कि वो ट्रांस ऑपरेटर कंपनी हमारे लिए काम करती है। आया, ये नेचर की रेस्पेक्ट के कारण आया। इस नेचर की रेस्पेक्ट ने ही हमारे इस काम को हरा भरा बनाया। हमारा काम ग्रीन रिवॉल्यूशन से बिल्कुल अलग तरह का है। केमिकल फर्टिलाइजर मशीन सब लगी, हमने वो सब नहीं किया। हमने जो भी कुछ नेचर में आया, नेचर को रिजुनेट किया। दोस्तों, मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं रिजुवनेशन में विश्वास करता हूं, रिबर्थ में भी विश्वास करता हूं। जो लोग रिबर्थ में विश्वास करते हैं वो नेचर की रिजुनेशन में विश्वास रखते हैं, और जो लोग नेचर की रिजुविनेशन में विश्वास करते हैं उनको कोविड जैसी महामारी नहीं सता सकती। कोविड जैसी महामारी उन लोगों को सताती है जो सब कुछ खाते हैं, जो नेचर को रेस्पेक्ट करते हैं, नेचर को प्यार करते हैं, जो नेचर को सम्मान करते हैं। उनको उनको ये सब नहीं होता। मैं भारतीय आस्था को विश्वास करता हूं और भारतीय आस्था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करता हूं। सब इंडियन कॉन्शियसनेस एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये भारतीय आस्था में से जन्मा हमारा हमारा धर्म है। हम सब भारतीय प्रकृति को सम्मान करते हैं। जब तक हम सम्मान करेंगे तब तक हम डिजास्टर फ्री रहेंगे। यदि सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा ड्राउट और फ्लड बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी क्राइसिस बढ़ेगी। पहाड़ पर भी बाढ़ आएगी, केदारनाथ की बाढ़, कश्मीर की बाढ़, आप सबको याद है, इसलिए मैं उसको उल्लेख कराना नहीं चाहता। आनंद शर्मा जी ने बहुत अच्छे से मेंशन किया अपने भाषण में। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसके सॉल्यूशन हैं और इसके सॉल्यूशन आप अब आगे की मेरी स्लाइड में देख सकते हैं। दोस्तों, जब हमने काम शुरू किया था तब हमारा पूरा इलाका रेन शैडो रीजन था। उस जमाने में सूरज की लाल गर्मी हमारी धरती को लाल करके एक तरह से हीट के कारण बादलों को, जो समुद्र से बादल आते थे अरेबियन सी से, उनको ऊपर उठा देती थी और बारिश नहीं होती थी। हमने अपने इलाके में, आप देखेंगे कि अरेबियन सी से बढ़ने वाला बादल ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे पूरा बरस जाता है। जब वो पूरा बरसता है तो हमारे इलाके की जो रेड हीट थी उन बादलों को, खाली को वापस भेज देती थी। परिणाम ये हुआ कि हमने अपने इस इलाके में 11,800 वाटर बॉडीज 7 जिलों में बनाई। ये
कॉन्टिगुअस एरिया है 7 जिलों का, और इनमें जहां हमारी वाटर बॉडीज में बारिश नहीं होती थी, पहले हमारे पास जो सरिस्का का जंगल था, उसमें फॉरेस्ट था, उसमें बारिश होती थी। उस बारिश के पानी को हमने अपनी वाटर बॉडीज में, जो उसके ढाल का पानी था, वेस्टर्न पश्चिम ढाल का पानी सरिस्का के बाहर का, वो हमारी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट किया, और उसके कारण हमारी वाटर बॉडीज पेरिनियल हो गई। हमारी वाटर बॉडीज जब पेरिनियल हुई तो उनमें से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इस माइक्रो क्लाउड्स ने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया। अरेबियन सी में बनने वाला बादल हमारे माइक्रो क्लाउड्स से मिलने लगा। जब हमारे माइक्रो क्लाउड्स बनने लगे तो मैक्रो क्लाउड्स भी जमीन के पास आने लगे और रेड हीट गायब हो गई। फिर रेड हीट की जगह येलो हीट ने ले ली, और येलो हीट जो है वो उत्पादन की हीट है। रेड हीट अल्ट्रा हीट है, ब्लू हीट H2O है। जब सूरज समुद्र के पानी को एवोपरेट करता है तो H2O बनता है, बादल बनता है, और वो फिर ग्रीन हीट के ऊपर जाता है। ग्रीन हीट में O2 होता है। तो ये H2O और O2 जब मिलते हैं तब पानी बरसने लगता है। अब हमारे इलाके में अच्छी बारिश होती है। ये जो हमारे इलाके की अच्छी बारिश है, ये एक तरह से हमारी परिस्थिति को, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के कारण ठीक कर पाई। ये आखिरी स्लाइड है, इसको आप देखेंगे। दो तरह के एलिडो इम्पैक्ट होते हैं, एक धरती के नीचे की तरफ और एक धरती के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ। ऊपर ग्रीनरी बढ़ने के कारण मॉइस्चर और कार्बन कम हुआ, O2 बढ़ी, और नीचे अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होने के कारण वाटर लेवल ऊपर आया, जिसमें पानी निकालने में हमारी बिजली और ऊर्जा और डीजल और कार्बन कम खर्च हुआ, और एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन हुआ। जो लोग शहरों में चले गए थे वो वापस आके अपनी जमीन पर खेती करने लगे। तो ये जो मॉइस्चर बना मिट्टी में, उस मॉइस्चर ने एक बड़ा परिवर्तन किया, और उस बड़े परिवर्तन का परिणाम है कि हमारी धरती उत्पादक बन गई, हमारी धरती की हरियाली बढ़ गई, और जो हमारे लोग उजड़ कर गए थे वो वापस आकर खेती करने लगे। अब ये इलाका अपने आप आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर केवल बिजली की पावर से नहीं बनता है, आत्मनिर्भर केवल चौड़ी सड़कों और हवाई जहाजों से नहीं बनता है। आत्मनिर्भर बनना होता है हमारे जीवन में हैप्पीनेस हो, हमारा जो आनंद है वो जब आता है, जब हमें अपनी जगह पर रहने, खाने, पीने, जीने की सुरक्षा हो। आज दुनिया में प्रॉफिट इकोनॉमिक नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी नेटवर्क, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब कमजोर हो गई हैं। तो जब हमारा सिक्योरिटी का नेटवर्क कमजोर होता है तब हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमारी आत्मनिर्भरता होती है हमारे रहने, खाने और जीने के स्वास्थ्य से और आनंद से। तो मेरे इस इलाके में आनंद भी बढ़ा, सुख भी बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ा, लोगों का रोजगार भी बढ़ा, और उससे ये इलाका आत्मनिर्भर भी। दोस्तों, मैं आज की इस वेबिनार में बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आनंद शर्मा जी को, सूर्य प्रकाश को, सबको और पूरे इंस्टीट्यूट को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे, आपके इंस्टीट्यूट को अब कुछ ऐसे क्षेत्र बनाने चाहिए जिनमें डिजास्टर मिटिगेशन का एक विजुअल इम्पैक्ट देखा जा सके। मैं इस विजुअल इम्पैक्ट को दिखाने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, मैं इतना बता दूं कि हमारा छोटा सा काम जो एक गांव से शुरू हुआ था, उसने ग्लोबल लेवल पर पॉलिसी चेंज करने में सफलता मिल पाई। 2015 से पहले क्लाइमेट चेंज में वाटर कहीं शामिल नहीं था।
हम लोगों ने पेरिस में 60 दिन तक रहकर आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और हमारा स्लोगन था वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। मुझे बताते हुए खुशी है कि पेरिस एग्रीमेंट में इसको स्वीकार किया गया और एक तरह से जो इंडिया का जो स्लोगन था वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ और एक तरह से यूएन सिस्टम ने उसको स्वीकार लिया। तो कभी कभी छोटा सा एक्शन, स्मॉल एक्शन ग्लोबल पॉलिसी को चेंज करने में सफलता पाता है, लेकिन वो तब पाता है जब विजुअली कुछ देखने को मिल सके। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आपके कुछ सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछ लें, और नहीं तो मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for sharing your experiences regarding water conservation with us. Our last speaker of the day is Professor Surya Prakash, head GMRD NIDM. He is faculty in charge of 3 specialized center: hill area development, early warning communication, and coastal disaster risk reduction, as well as coordinating faculty for 8 central ministries: mines, communication, northeastern states, petroleum and natural gas, shipping, labor and employment, new and renewable energy, and parliamentary affairs. Over to you, sir. एंड पहले तो मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर, जबकि आज के दिन उनका जन्मदिन था और वो काफी व्यस्त थे, उसके बावजूद मेरे अनुरोध पर हमारे साथ सम्मिलित होने का कष्ट किया, और हमें बहुत खुशी है कि इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार भी हमारे साथ साझा किए। मेरे लिए और भी ज्यादा हर्ष की बात है क्योंकि वो हमारे जिले से बिलोंग करते हैं, और अरावली और हिमालय का एक बंधन जो हमारा है, राजेंद्र सिंह जी भी हिमालय में भी काफी काम किए हैं, उन्होंने सिर्फ अरावली का एग्जाम्पल आपको उदाहरण दिया, परंतु हिमालय में गंगा बचाओ आंदोलन में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और सभी नदियों के और पर्यावरण के बचाव में भी उन्होंने काफी सहयोग किया है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम जब राजस्थान में रहते हैं तो हम जल और हरियाली को बहुत महत्ता देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नजर आता है और वो हमारे लिए बड़ी खुशी का क्षण होता है। और वहीं पर जो हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर खूब हरियाली और पानी की काफी व्यवस्था और प्रकृति का आशीर्वाद है, वहां इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा और उसका एक तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से कि मेरे इस लेक्चर तक रहें, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे। और मैं एक अपनी पावर पॉइंट, उन्होंने जैसा कहा हमसे कि हमें फील्ड में जाना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा उनसे दिखाना चाहूंगा कि हम फील्ड में कैसे उतर रहे हैं और जाते हैं और क्या कर रहे हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड ज्यादा संवेदनशील है भूस्खलन से, बाढ़ से, भूकंप से। ये प्राकृतिक आपदाएं जो अक्सर इस क्षेत्र को ग्रसित करती हैं। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कल अजय रावत जी, प्रोफेसर अजय रावत जी ने जिक्र किया था 1880 की लैंडस्लाइड जो शेर का डांडा हिल नैनीताल में हुई थी, उसका एक हिस्टोरिकल पिक्चर मैं दिखा रहा हूं जिसमें 151 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है वहां पर भूस्खलन संबंधित कार्रवाइयां शुरू की थी। अब मैं कुछ आपको फील्ड जर्नी से लेके जा रहा हूं, कुछ ऐसी आपदाएं जो हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। ये एक भूस्खलन है औंगी बटवाड़ी से आगे एक जगह है, बटवाड़ी के आसपास, जहां पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, 500 मीटर इसका हाइट था। और अक्सर हम जब भूस्खलन होता है, हम पहाड़ों में कहते हैं कि हमारी जो लेबर है और जो हमारे बुलडोजर है, ये बहुत काम के होते हैं, क्योंकि ये सारा मलबा दूर हटाते हैं और हमारा रास्ता बनाते हैं। परंतु इस पर्टिकुलर लैंडस्लाइड में वो बुलडोजर, अगर आप ध्यान से देखें, एक येलो कलर का कुछ बॉडी नीचे नजर आ रहा है, जो कि एक बुलडोजर है जो नदी में भूस्खलन के साथ बह गया, और इसमें 4 लेबर भी दब गए। तो ये बॉर्डर रोड जो उस समय रिस्पॉन्सिबल था, उसका कार्रवाई था। एक दूसरा लैंडस्लाइड जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, न सिर्फ उत्तराखंड में, मैं कहूंगा देश के नजरिए से, ये है मालपा लैंडस्लाइड। ये
18 अगस्त 1998 की बात है। 17 अगस्त की रात और 18 अगस्त की सुबह की बात थी। एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कैलाश मानसरोवर के रूट पर, जिसमें काफी यात्री जाते हैं इस पीरियड में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। और वो यहाँ पर टेंट लगाए हुए थे और रात को सेलिब्रेट किया। उसमें फेमस डांसर प्रतिमा बेदी भी थी और इसमें 200 से ज्यादा लोग की कैजुअलिटी हुई थी। और इस कैजुअलिटी के बाद भूस्खलन पहले स्थानीय स्तर पर समझे जाते थे, राष्ट्रीय आपदा के तौर पर भी समझे जाने लगे। इस तरह की बहुत सारी आपदाएं हुई। उसी समय में एक उखीमठ जगह है अलकनंदा रिवर में, हम अक्सर सोचते हैं कि जो भूस्खलन आता है वो नदी में आके उसका मलबा ठहर जाता है। इस भूस्खलन का मलबा ढाल इतनी तेज थी कि 2 किलोमीटर परली तरफ ढाल पे भी गया। तो ऐसी परिस्थितियां हो जानी कि जिसमें आदमी सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं, उसके बावजूद भी उसको जोखिम रहता है और उसमें फंस सकता है या उससे प्रभावित हो सकता है, हमारे लिए एक चिंतन का विषय है। इसी तरह से 2001 में फाटा एक जगह है, जब हम केदारनाथ की तरफ को जाते हैं उससे पहले गौरीकुंड से पहले फाटा आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ और उसमें एक स्कूल की बिल्डिंग जो नाले के बीच में खड़ी थी, जिसमें प्रिंसिपल साहब रहते थे, वो खुद भी उसमें फंस गए थे। तो इस तरह की आपदाएं जिसमें कई सौ लोग कई बार ग्रसित हुए या उसका शिकार हुए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। और ये एग्जाम्पल्स मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके दौरान मैंने काम किया या जिनमें मैं इन्वॉल्व रहा हूं। उत्तरकाशी का भूस्खलन 2003 का बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इस भूस्खलन के दौरान ऑलमोस्ट पूरा का पूरा शहर प्रभावित हुआ। इवन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनका भी अपना ऑफिस शिफ्ट करना पड़ा। तो ये एक ऐसी आपदा थी जिसमें एक नेशनल हाईवे इन्वॉल्व था, फॉरेस्ट इन्वॉल्व था, बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज, प्राइवेट हाउसेज और शॉप्स सब प्रभावित हो गए थे। तो अगर आप देखें, ये चित्र मैं दिखा रहा हूं, जैसे उन्होंने राजेंद्र सिंह जी ने दिखाया, एक आपदा पहले है और उसके बाद हमने क्या किया और कैसे हुआ। ये एक अच्छा क्षेत्र है जो पूरा ग्रीन है, और जब आपदा आती है तो क्या हो जाता है। ये सारी ग्रीनरी, इसमें 300 से ज्यादा पाइन फॉरेस्ट ट्रीज नीचे आ गए थे और एक बड़ा मुश्किल का समय था, जिसमें मैं आपको कुछ चित्र द्वारा दिखाता हूँ। ये आप देख रहे 3 बड़े होटल है। अब इनमें से कुछ होटल ऐसे भी है जहां हम खुद जाके रहते थे और हमें ये आइडिया था कि कभी कभी भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं। और इस भूस्खलन के बाद इन 3 बड़े होटल्स का क्या हुआ उत्तरकाशी क्षेत्र में, ये देख सकते हैं। इस मलबे के नीचे इनका नामो निशान नहीं बचा। तो आप सोच सकते हैं कि जब टूरिस्ट सीजन होता है, पिलग्रिमेज सीजन होता है और उस समय ऐसी आपदाएं आ जाएं, तो उस समय कितनी जनहानि होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो और इसके अलावा अक्सर पहाड़ों पे आप देखते हैं भूस्खलन के दोनों तरफ बसें खड़ी कर देते हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, और हम ये नहीं जानते कि उसके बगल में भी भूस्खलन की संभावनाएं हो सकती हैं। आप ये देख रहे हैं बस एक, ये हम खड़े हैं और अगर आप गंगोत्री की तरफ को जाते हैं, एक जगह है सूखी डांग, जहां से हम डोकरानी ग्लेशियर की तरफ को जाते हैं, वहां पर हम खड़े हैं और एक भूस्खलन आता है और वहां अक्सर हर साल आता था। और इस भूस्खलन के दौरान क्या हुआ कि बारिश चली है और एक बड़ा पत्थर ऊपर से पहाड़ से खिसक आया और इस बस में 13 लोग बैठे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे क्रॉस करने के लिए, और पत्थर इस पे गिरा तो आप देखते हैं बम विस्फोट जैसी इस पे परिस्थिति आ गई। तो बाय चांस उनमें से एक लेडी ने दूर से उस पत्थर को हिलते हुए देख लिया, आते हुए देख लिया, वो चिल्लाई तो 13 के 13 पैसेंजर्स बाहर आ गए थे और जिस क्षण बाहर आए उसी क्षण ये पत्थर बस पे गिरा। तो कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु आप सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। अब मैं आ रहा हूं उत्तराखंड में, हमें नैनीताल से थोड़ा सा आगे को चलते हैं। पिथौरागढ़ में मनस्यारी तहसील है। मनस्यारी में 2009 में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। तकरीबन 43 लोग इस भूस्खलन में दब के मर गए। और अक्सर ये भूस्खलन जो पहाड़ में होता है ये रात के समय में होता है, या तो लेट इवनिंग और लेट अर्ली मॉर्निंग, और उस समय जब आदमी अचनचेत सा होता है, बादल छाए रहते हैं, काला होता है और बारिश की वजह से बिजली गुल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी को कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता और वो इन आपदाओं का शिकार हो सकता है। और इन आपदाओं का शिकार एक्चुअली और भी खतरनाक और दर्दनाक हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमें पता तो नहीं लगता, परंतु नुकीले पत्थर आते हैं,
शरीर के अंग काट ले जाते हैं। आप देखते हैं हमने बॉडी निकाली तो उसका हेड मिसिंग है। तो इतना नुकीला और इतना खतरनाक पत्थरों का तेज बहाव और टकराव होता है कि बॉडी के पार्ट्स कट के कहां चले जाते हैं हमें समझ में नहीं आ पाता है। उसके बाद हम उसके एग्जामिनेशंस और रिपोर्ट और रेस्क्यू में लग जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था, एक हम सोचते हैं सड़क की तरफ ज्यादा भूस्खलन होते हैं क्योंकि कटाव हुआ है और ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन वगैरह होता है, तो उससे सड़क के नजदीक के जो पहाड़ है कमजोर हो जाते हैं। परंतु सड़क के अलावा जो नदी नाले दूसरी तरफ से भी आते हैं, वो भी एक हमारे लिए आपदा जनित क्षेत्र बनाते हैं। अगर आप देखें लामगढ़ 2005 की बात है, लोगों ने कहा लामगढ़ में लैंडस्लाइड आ गया। एक्चुअली वो हाईवे पे जोशीमठ पे नहीं आया था, वो परली तरफ एक नदी में पूरा मलबा लेके आया। उसने अलकनंदा को रात में ब्लॉक किया, जो लोगों के ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि रात को जो नदी ब्लॉक होती है वो पता नहीं लग पाता। पर ये ब्लॉक बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि ये जब पूरी नदी का बहाव रोकता है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश चलती रहती है, बहाव बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है और वो उसका जो बांध होता है जो इसके मलबे से बनता है उसको वो तोड़ देता है। और जब वो तोड़ के निकलता है तो ऐसा तेज बाढ़ लाता है कि इस तेज बाढ़ को कोई समय नहीं मिलता, जो भी इसके क्षेत्र में आता है बिल्कुल उसको सफाया कर देती है। ये ऐसा ही क्षेत्र में अब आपको भागीरथी थे अलकनंदा के बाद यमुना में लाता हूं। यमुना में अगर आप बरकोट से ऊपर को जाते हैं, एक जगह है खनेड़ा, बहुत पुराना 25-30 साल कम से कम ज्यादा पुराना लैंडस्लाइड हो गया होगा, आता है। इसके नीचे एक पुल है और वो पूरा रोड तक ब्लॉक कर देता है और नदी का स्तर बढ़ता है। अब जब ऐसा स्तर बढ़ जाता है और उसके नीचे पुल भी हो और सड़क भी हो तो ना सिर्फ सड़क को नुकसान करता है और पुल को भी बहा ले जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे हमारी एक्सेस भी बंद जाती है, हम उस क्षेत्र में जा भी नहीं पाते और हमें बहुत नुकसान हो जाता है। अब मैं 2013 की सबने जिक्र किया, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2013 में मैं उत्तराखंड में ही था, 11 से 17 जून में, और बहुत बाढ़ थी। अब मैं वापस दिल्ली गया, बाढ़ के बीच में से गया, परंतु वापस मुझे डिप्यूट कर दिया गया कि बाढ़ के क्षेत्र से आप वापस आए हैं, परंतु आपको जाना होगा क्योंकि उत्तराखंड को मदद करनी है। तो मैं क्षेत्र में वापस गया और मैं भागीरथी ये अलकनंदा वैली में जिसमें ज्यादा नुकसान हुआ था ऊपर की तरफ गया, तो मुझे मालूम था कि उस क्षेत्र में बहुत बड़ी इनफेमस लैंडस्लाइड्स हैं, ना सिर्फ बाढ़ बल्कि भूस्खलन भी बहुत हुआ है। तो जब मैं भूस्खलन में क्रॉस करता हूं तो ये शिरोवगढ़ लैंडस्लाइड, कल्यासोर के नाम से बड़ा फेमस है ये जगह। तो यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड होता था। तो दिन में 11 बजे मैंने क्रॉस किया। अब ये देखिए 4 बजे का सीन है, सड़क बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप इमेजिन करिए, आप ड्यूटी पर हैं, अगर आप फैमिलियर नहीं है कि भूस्खलन कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे। तो जब आपदाएं आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे और भी आपदाओं को लेके आती। कहते समस्या अकेले नहीं आती, अपने बहन भाई संबंधी रिश्तेदार सबको लेके आती है। बस्ताड़ी एक एरिया था, मुझे याद है जुलाई 2016 में हम रुड़की में सीबीआरआई में एक भूस्खलन का प्रोग्राम कर रहे थे। उससे जस्ट पहले 15 दिन पहले 1 जुलाई 30 जून की रात को 2016 में बस्ताड़ी में क्लाउड बस्ट हुआ और अचानक गांव में जो है भूस्खलन हुआ, मलबा आया और कुछ लोग दब गए। अब मैं एक नया उदाहरण दिखा रहा हूं आप पे, जो सबक सीखने की बात शर्मा जी ने कही या राजेंद्र सिंह जी ने कही, वो बता रहा हूं कि इसमें जब रात में 4:30 बजे के आसपास जब कुछ लोग दब गए मलबे में, तो गांव वो चिल्लाए, तो गांव के आसपास के लोग आए और उन्होंने बचाने की कोशिश की और उन्हें बचा भी लिया। पर बचाने के बाद जो 20-22 लोग जिन्होंने बचाया था वो बड़े खुश हुए, आपस में बातचीत करने लगे। सुबह का समय हो गया था, चाय बनाकर, एक घर में पक्का घर था, चाय नाश्ता करने लगे, जिसमें डॉक्टर भी थे, एक बैंक मैनेजर भी थे। तो अचानक से दूसरा एपिसोड भूस्खलन का आया, बड़ा मलबा आया और जिस घर में वो सारे एकत्रित हुए थे वो भी उसमें से आकर बहा के ले गया। तो इससे जो पहले बचाए गए थे उसके अलावा जो दूसरे जिन्होंने बचाया था वो बचाव कर्मी भी, हमारे समाज से भी उस भूस्खलन के शिकार हो गए। तो उसके बाद जब आपदा में हमारे लिए बचाव या राहत दल पहुंचते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इनमें एक्सेस बड़ा लिमिटेड है और आप सही लोकेशन की जानकारी आसानी से नहीं दे पाते हैं। अब ये तो था उत्तराखंड, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, मैं आपको कुछ दिशाएं ले जा रहा हूं
अपने साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में केरला में एक शादी चल रही थी। नवंबर 2001 की बात है, मेरे ख्याल 9 नवंबर की बात है। तो रात बहुत बारिश हुई और एक बड़ा भूस्खलन हो गया। तकरीबन 39 लोग उस शादी में जो शामिल थे उस भूस्खलन का शिकार हो गए। ऊटी बड़ा फेमस जगह है। अगर आप साउथ में जाते हैं तो ऊटी एक पर्वतीय स्थल है जहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे हम यहाँ मसूरी में जाते हैं, वहां पे ऊटी में जाते हैं। अब ऊटी कैसे, हम जो राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि विकास की तरफ और आर्थिकी की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं, या कल रावत जी ने कहा कि देयर इज एनफ फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, गांधी जी ने कहा है। तो हम उसी के एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं कि एक पहाड़ी क्षेत्र जिसमें सीमित संसाधन होते हैं, हम इतना ज्यादा रिसोर्सेज को बनाने की और लगाने की कोशिश करते हैं जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है। तो इतने होटल आ गए, इतना यूटिलाइजेशन हो गया कि उसकी जितनी भी स्लोप थी अनस्टेबल हो गई। और उसके साथ ना सिर्फ वो होटल, टूरिस्ट, बल्कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेस्ट एरिया भी, प्राकृतिक संसाधन भी प्रभावित हो रहे हैं। ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कर्नाटका से। वो तमिलनाडु, केरला, अब आगे कर्नाटका में कारवार 2009 में बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था। कहते हैं कि वो भी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट था। अब उसमें 19 लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड में दब के मरे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हमारे नॉर्थ, ये देखते हैं आप, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में आदमी दब के रह जाता है भूस्खलन की परिस्थितियों। और एक बड़ा भयावह जो दर्दनाक है और जिसको हमें हमेशा याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें वो लोग मरे, वो बच्चे मरे। ये जो है 5 से 12 साल की उम्र के थे 18 बच्चे। 18 अगस्त 2009 या 10 की बात है। मुनस्यारी के तुरंत बाद ये कपकोट शुंगढ़ का एरिया है। हमारी उत्तराखंड की टीम उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ पे गई थी। वो कहीं से वापस आ रहे थे तो तुरंत मुझे पता लगा, तो मैंने उनको अनुरोध किया कि वहां क्षेत्र में जाएं और जो सहायता उपलब्ध कराई जा सके करी जाए। परंतु अफसोसजनक बात यह कि 5 से 12 साल की उम्र के 18 बच्चे इस भूस्खलन का शिकार हुए जो एक स्कूल में पढ़ने गए थे। तो हमारे क्षेत्र में हम किस तरह के स्कूल बना रहे हैं, किस तरह की भवन बना रहे हैं, ये हमें ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। इसी तरह से सरकारी बिल्डिंग, ये मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का दिखा रहा हूं मैं, इसमें तकरीबन 35 लोग के आसपास की डेथ हो गई थी जब एक पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग, जिसमें बड़ा साफ नजर आता है कि यहाँ भूस्खलन की संभावनाएं हैं, एक नीचे की और प्राइवेट बिल्डिंग्स पर गिरी और जिसमें लोग दब के मर गए। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी सीधी स्पाट नजर आ रही है उसी मिजोरम वाली भूस्खलन की परिस्थिति में। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएं, महाराष्ट्र में मलन लैंडस्लाइड अंबेगांव तहसील पूना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, और पूरा का पूरा गांव रातों रात सफाया हो गया सुबह भूस्खलन में। और बारिश हुई रात में बहुत, और सारे लोग, पूरा गांव का जितना भी घर बार थे सब दब गए। तकरीबन 140 लोग इस भूस्खलन में दब के मरे थे। तो हमारी मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज भी कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है अगर वो पूरा प्रकृति के स्वरूप में ना समाये और तरीके से ना लिया। अब मैं आता हूं अपने हेरिटेज पे। ये एक हेरिटेज रेलवे ट्रैक है, दार्जिलिंग में आ गया। हम अगर दार्जिलिंग की तरफ से जाते हैं, आपको पता है टॉय ट्रेन लाइन है, पूरा का पूरा अगर आप देखें लाइन हवा में खड़ी है, पीछे से लैंडस्लाइड हुआ और 500 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट है। ऐसी जगहों पे जो हमारा हेरिटेज है, यूनेस्को हेरिटेज लाइन है, ये हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि हम भूस्खलन संबंधित सुरक्षित उपाय नहीं कर रहे हैं। बाढ़, विद्युत योजनाएं सब नदियों पे स्थित हैं, उसमें हम टनल्स भी बना रहे हैं, परंतु अगर भूस्खलन आते हैं, बाढ़ आते हैं या बांध बन जाते हैं तो वो हमारे इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर में भी हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, J&K है और दूसरे क्षेत्र हैं, हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ये एक लेक दिखा रहा हूं मैं, पारिछू 2003-4 में बनी थी और उसके बाद काफी इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और नदी का पानी इकट्ठा हुआ और बांध टूटा तो सतलुज का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी सड़कें और ब्रिजेज खत्म हो गए। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन पे हम निगाह रखें। क्लाइमेट चेंज संबंधित बाढ़
अब मैं लद्दाख में आ जाए, अगर जो नया हमारा यूटी बना है उसका एग्जांपल ये हुआ था 4 से 6 अगस्त 2009 की बात है, जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट कहते हैं। हमने राजस्थान डेजर्ट है वेस्टर्न सीजनल, परंतु ये जो ले लद्दाख का एरिया है ये हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट एरिया, रेन शेडो एरिया में पड़ता है। 100 मिलीमीटर पर एनम भी रेनफॉल नहीं होती, और एक दिन में वहां पे 4 से 6 अगस्त में हुई और इतनी बाढ़ आई कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र मलबे में ग्रसित हो गया। आप देख सकते हैं क्या हाल था। यहाँ मिट्टी की बनी सन बेक्ड ब्रिक्स को यूज करते थे घरों के लिए, और जब इतना पानी आया तो अगर मिट्टी की ईंट होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा उसका हाल, तो घर कहाँ जाएंगे। तो ये परिस्थितियां हमारे देश में, मलबा हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, गढ़ बन जाता है। और एक और चीज का ध्यान मैं दिलवाना चाहूंगा, जब हम पहाड़ों में बात करते हैं तो अक्सर हम ये बात करते हैं कि नदी, मलबा और मिट्टी, परंतु ज्योमेट्री, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नदी का बहाव देखें तो एक तरफ कटाव करती है तो एक तरफ जुड़ाव करती है। तो ये कटाव की क्या दिशा है, ये नदी जब तलहटी काट देती है तो ऊपर से भूस्खलन शुरू होता है। तो अगर ये चीजें का हम ध्यान रखें जो भी विकास कर रहे हैं, तो उस समय में हम इन चीजों को बचा पाएंगे। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2013 में बहुत सारे लोग जानते हैं, पर 2012 अगस्त में बड़ी भूस्खलन और लैंडस्लाइड हुई थी 80 गंगा भागीरथी रिवर वैली में। अगर हमने उससे सबक लिया होता और उसको समझा होता तो शायद 2013 की बाढ़ में हम लोगों को बचा पाते। वो ही फोटो जो आप 2013 में देखेंगे वो 2012 में मैं दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि जितनी भी नदी किनारे की बिल्डिंग्स थी, उनकी फाउंडेशंस, उनके पियर्स सब गिर गए, नदी में भवन गिर गए, ठीक है नहीं, ये सारे। और भवन हमने बिल्कुल नदी किनारे बनाए हैं रिवर व्यू के लिए, होटल्स बनाए हुए हैं, वो सारे नदी के बहाव में आ गए। तो ये और पूरा का पूरा एक होटल, गंगा होटल, जिसको काफी टीवी में भी दिखाया गया था, पूरा का पूरा देख के वुडन लॉग से भर गया उसका फ्लोर। अगर इसमें टूरिस्ट होते तो क्या हाल होता। और ये बड़ा पिक्चर अगर आप देखें बड़ा टिपिकल है, और टीवी में बहुत ज्यादा दिखाया था कि नदी में गिर गया है। तो ये अपनी जगह था, इसका फाउंडेशन चला गया था, और इसका फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया था, रूफ गिर जाती है। तो अगर आप सेंसिटाइज हैं और समझ रहे हैं, ये भूस्खलन जो आपने गांधी सरोवर का देखा, इसके होने से पहले मैं वहां गया था, हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट से पहले मैं वाडिया इंस्टीट्यूट में था, वहां पर ग्लेशियल मॉनिटर का काम चल रहा था, तो उनकी टीम भी गई हुई थी वहां पर। तो गांधी सरोवर पहले ही बर्फ के पिघलने से, क्योंकि जून में काफी गर्मी होती है, मई में काफी गर्मी होती है, काफी पानी से भरा हो रखा था। उसके बाद ऊपर से बारिश होगी, और शर्मा जी ने जैसे बताया कि ईस्टर्ली वेस्टर्ली और मानसून का कॉम्बिनेशन भी हो गया। तो हम जब वो ओवरलोड हुआ और उसका जो है मोरेनिक डैम, एंड मोरेन जो बस्ट हुआ, उसके बाद जो पानी आया उसने अपना पुराना चैनल ले लिया, और उस चैनल के लेने के बाद मंदाकिनी में ये फ्लैश फ्लड और दूसरे फिनोमिनाज की बात हुई, जो परिस्थिति आप पहले और बाद में यहाँ देख रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां पहले और बाद की हैं। अब जो हम नीचे आते हैं, जब ऊपर पहाड़ों में ज्यादा पानी आता है और नीचे कम भी बारिश हो, तो भी बारिश कमे के पानी की वजह से नदियों में उफान आता है। और वो नदियों में जब उफान आता है तो उसके किनारे जितने भी भवन आप देख रहे हैं बने हुए हैं, वो सब उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर हमने एम्बैंकमेंट नहीं लगाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन वर्क्स नहीं करे, और अपने भवन निर्माण कर लिए तो, या होटल निर्माण कर लिए, तो हम आपदाओं का शिकार होने के लिए प्रभावित होने वाले हैं। ये एसएसबी का कैंप है, ट्रेनिंग कैंप था, पूरा इसमें मलबा आ गया था। मैंने बताया ना, एक जगह नदी अपना मलबा जमा करती है और दूसरी तरफ से कटाव करती है। तो ये दोनों काम हमारे लिए प्रभाव करते हैं हमें, या तो उसमें मलबे में दब जाते हैं या ऊपर से भूस्खलन हो जाते हैं। ये भूस्खलन का एग्जांपल है, जिसमें पूरी रोड एक्सेस नहीं कर पा रहे, आप कोई संसाधन नहीं ले पा रहे और लोगों की मदद नहीं कर पाए। अब तीसरी बात पे आते हैं हम, भूकंप। भूकंप संवेदनशील है। मैं भूस्खलन के लिए काम कर रहा था, मुझे याद है सन 1990 में जब आईटीबीपी कैंप पे बंदरकोट के पास मातली में आईटीबीपी का कैंप था, एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और आईटीबीपी कैंप अफेक्ट होने वाला था, तो हमें उसको स्टडी करने के लिए दिया गया। मैं उस पर स्टडी कर रहा था, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा था, मॉनिटरिंग चल रहा था। उसी समय में 20 अक्टूबर की बात है 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आ गया। अब भूविज्ञानी होने के नाते हमें उस पर आमंत्रित किया गया कि आप भूविज्ञानी के नाते इस पे बताइए क्या हुआ और कैसे क्या करें। तो उस समय में जो नुकसान हुए थे, तब भूस्खलन की जो भूकंप का पहला
जो है वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया था हमने कि कौन से ऐसे भवन हैं जिनको हम ये क्षतिग्रस्त होते हैं और किस क्षेत्र में होते हैं और किस तरह के उसके हमें उपाय करने चाहिए। तो ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको सिक्किम भूकंप का, जो 18 सितंबर 2011 में हुआ था। इसमें कैसे अगर भवन अच्छा भी बनाया, अगर ढाल अस्थिर है तो भूकंप के टाइम पे वो बच नहीं पाएगा, ये परिस्थितियां दर्शाता है। सड़कें बंद हो जाएंगी, मौसम इतना खराब होता है कि आप उस एरिया में ना तो फ्लाई कर सकते हैं ना रोड से जा सकते हैं, तो आप मदद कैसे पहुंचाएंगे? ये एक हमारे लिए गंभीर चिंतन का विषय है। हमारी सभी फोर्सेस लगती हैं। इसके अलावा मुझे मौका मिला तुर्की में एक भूस्खलन का अध्ययन करने का, और वहां मैंने क्या देखा कि घरों के पूरे समूह के समूह एक साथ चल पड़ते हैं, और आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे एक पूरी की पूरी मिट्टी की लेयर दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर गई है। एक बड़ा जो है एम्बिगुअस लैंडस्लाइड होता है जिसमें क्लियर स्कार नहीं नजर आता। तो आपको ऐसे भूस्खलनों का भी चिन्हित करना बहुत जरूरी होगा। ये जापान का है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे हमारे देश का कोई अलग भाग हो या कोई विदेश का भाग हो, ये सभी जगह इस तरह की आपदाएं हैं और उनके लिए उपाय भी किए जाते हैं और करने चाहिए। तो हमें समझने की जरूरत है कि उसके क्या कारण हैं और किस तरह से कौन से प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से वो बढ़ रहा है। हमारे राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि सामाजिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है, तो उसमें पर्यावरण प्रकृति का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम जब सामाजिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं, तो हम ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से ये प्रकृति रुष्ट हो जाती है, और प्रकृति के रुष्ट हो जाने से भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और ऐसी आपदाएं आती हैं और प्रभावित करती हैं। तो अनसेफ कंडीशंस को हम क्रिएट करते हैं, जो असुरक्षित कारण हम कहते हैं कि बन जाती हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है और बताने के बहुत सारी बातें हैं। उसके अलावा जो हम भवन बनाते हैं, अगर हम सही डिजाइन, टेक्नोलॉजी, लोकेशन के हिसाब से बनाएंगे तो शायद सुरक्षित रह पाएंगे, और इन चीजों को हम कंट्रोल करेंगे तो सीमित बना पाएंगे। तो ये सब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब जोखिम तभी होता है जब ये सारी चीजें एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं। तो ऐसा प्रेशर बन जाता है जो मानवीय क्षमता के बाहर हो जाता है। तो ऐसी आपदाएं, ऐसा जोखिम जो मानवीय क्षमता से बाहर हो, उसी में हमें जो है बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें समन्वय बनाने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है और जोड़ बनाने की जरूरत है कि संवेदनशीलताएं कम करें, आपदाओं को कम से कम होने का, घटित होने की संभावनाएं बनाएं, और जो आपदाओं ने हमें सिखाया है उस सबक को हम बिल्ड बैक बेटर में आगे लेके जाएं। और ये समय और स्थान दोनों में बदलाव होता है। ये मैंने समय के हिसाब से दिखाया कि ऐसा नहीं है परिस्थितियां हर साल और हर वक्त एक जैसी रहती हैं, तो डायनेमिकली चेंज होती हैं और उसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो समय और स्थान के हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि आपदाओं के संख्या से ही हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उसके प्रभाव पे भी ध्यान देना चाहिए। भूस्खलन बहुत सारे होते हैं और 50,000 से ज्यादा हमारे जो है भारतीय सूक्ष्म विज्ञान ने देख रखे हैं। तो उसकी वजह से हमें सबके चिन्हित है और प्रभाव पता है, तो उसे कंट्रोल करना है। और ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉनिटरिंग के सिस्टम्स है, हमने मॉनिटर किया वर्णावत को भी, इंस्ट्रूमेंटली भी, बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसर्फेस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, कैमराज लगा सकते हैं, सोलर पैनल, वायरलेस सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग, सारे सिस्टम्स उपलब्ध हैं, और इनको हम जांच पड़ताल लैब में भी कर सकते हैं और दूसरे देशों और लैब्स के साथ सहयोग करके भी कर सकते हैं। और हमने जापान के साथ सहयोग किया, फील्ड में भी किया, और फील्ड में लोगों को सिखाने की भी कोशिश की, क्लासरूम्स के जरिए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम के जरिए, ई लर्निंग कोर्सेज के जरिए, और इसके अलावा विज्ञान प्रसार के जरिए, लेबोरेटरीज के इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, टेबल टॉप एक्सरसाइजेस के जरिए, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, सामुदायिक आपदा प्रबंधन के जरिए, वेबिनार्स के जरिए, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम्स के जरिए और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के जरिए हमने लैंडस्लाइड का बनाया है। और लैंडस्लाइड का प्रोटोकॉल है, और ये एग्जांपल फील्ड में हम सेट कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने किए हुए हैं जहाँ पे फील्ड में उसके बारे में बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है। और हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, जुड़ के
और साझेदारी के साथ करेंगे, तभी ऐसी बड़ी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और इसके लिए एक मैसेज है कि कोई हम सभी समस्याओं का हो सकता है समाधान ना कर पाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसके प्रत्युत्तर के लिए, मोचन के लिए, और जितनी जल्दी हो से उसकी रिकवरी के लिए। स्टोन है, जिस दिशा में इसको हिलाएंगे तुरंत अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारे समाज को भी इस दृष्टिकोण से तैयार रहना चाहिए कि हम प्रकृति से ऊपर नहीं है, आपदाएं हो सकती हैं हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए हमें मजबूत बनना चाहिए। हमारा ड्रीम है कि हमारा जो है देश आपदा से फ्री हो और रेजिलियंट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपनी पावर पॉइंट यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your experiences. Participants have asked a number of questions, but due to time constraints, we will take only few questions. So the first question is to Dr. Rajendra. Sir, what are your takes into linking of river projects? We are seeing flooding in some places and drought in other at the same time. How this can be balanced? Rajendra sir? Yes, I am answering. Yes, sir. हमारी सरकार ड्राउट और फ्लड आपदा से बचने के लिए लिंकिंग ऑफ रिवर सॉल्यूशन बताती है, पर लिंकिंग ऑफ रिवर सॉल्यूशन नहीं है, ग्रेट डिजास्टर है। क्योंकि लिंकिंग, ये सारी नदियां एक लेवल पे फ्लो नहीं करती, इनको जोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े डैम बना के पानी को लिफ्ट करके एक दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिसमें बहुत बिजली चाहिए, जिसमें पर्यावरण का डिजास्टर होगा चाहिए, ये सब। दोस्तों, भारत को ड्राउट और बनाना है तो लिंकिंग ऑफ रिवर सॉल्यूशन नहीं है, लिंकिंग आवर ब्रेन एंड हार्ट विद रिवर इज सॉल्यूशन। जहां लोग नदियों के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर नदियों के साथ काम करते हैं, वहां की मरी हुई सूखी नदियां बहने लगती हैं, वो इलाका ड्राउट फ्री हो जाता है और फिर उस इलाके में फ्लड भी नहीं आता। इसलिए लिंकिंग ऑफ रिवर इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर drought and flood. The linking our brain and heart is the solution for the drought and flood. Okay? जी सर, आपके लिए एक क्वेश्चन और है. In the steep slopes, hilly region, check dams are not suitable because quick siltation of reservoirs. In this case, how to make sustainable management of aquifers? Yes, agree. वहां पर चेक डैम और एनीकट दोनों सक्सेस नहीं होते। हमें वहां पर स्टीप स्लोप्स में कॉन्वेक्स डिजाइन की स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी। कॉन्वेक्स डिजाइन की स्ट्रक्चर्स पर सिल्टिंग का लोड नहीं होता और वो सस्टेन करती है, और उसमें से पानी अंडरग्राउंड एक्यूफर्स में, वर्टिकल फ्रैक्चर्स में और अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स में भी रिचार्ज होता रहता है। इसलिए आप हिमालय के यदि स्टीप स्लोप पे काम करना चाहते हैं तो आपको स्टीप स्लोप मिलेंगे, स्टीप स्लोप में कॉन्वेक्स डिजाइन की स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं अभी आपसे सूर्य प्रकाश जी इजाजत ले सकता हूँ? ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। In case of geohydrological disasters in hills, the physical connection and mobile connectivity gets disrupted. In this case, what should be done so that the local people or community can help themselves? First aid, emergency connection, search, rescue, till the respective authorities come into action. Can you repeat the question? I did not get the question. Sir, in case of hydrological disasters in hills, the physical connection and mobile connectivity gets disrupted. In this case, what should be done so that local community can help themselves? See, मैंने शायद अपने लेक्चर में पहले बताया था कि पहाड़ों में जब ये डिजास्टर्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है और आपका रेडियो, टेलीविजन और इवन मोबाइल फोन भी काम नहीं करते।
उसके लिए मैंने आपको एक सजेशन दिया था। एक सजेशन तो आपका ये था कि आपको कनेक्टिविटी के लिए आपके पास एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है उसके लिए आपको एफएम कम्युनिटी रेडियो, और उस रेडियो भी इस तरह से मैंने जैसे बताया आपको कि उसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, बैटरी की जरूरत नहीं होती, पीछे एक हैंडल लगा होता है, आप उसको 60 बार हैंडल को घुमाएंगे तो उसमें अपने आप डायनेमो, जैसे आप पुराने जमाने में देखा करते हैं ना साइकिल पे लगाते हैं साइकिल की लाइट, या बाइस्कोप देखा करते थे लोग, उसी वही सेम डायनेमो प्रिंसिपल पे ये काम करता है और बड़ा सिंपल है, कोई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं है, उसको यूज किया जा सकता है। तो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से आप महत्वपूर्ण जानकारियां, पूर्वानुमान, चेतावनी, ये सब चीजें, दवाई कहाँ मिलेगी, पानी कहाँ है, कहाँ पानी खराब, ये सारी जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा और यदि आपको चेतावनी देनी है, यदि आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है, तो पहले जो जैसे जगह होता था ट्रेडिशनल सिस्टम्स हुआ करते थे आपके पास। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हुआ था, एक खड़ा हुआ बंदा पहाड़ पे खड़ा हुआ है और भोंपू बजाएगा जोर से, तो वो दूसरे पहाड़ तक उसकी आवाज चले जाएगी, वहां पर एक और आदमी खड़ा हुआ है भोंपू लेकर, वो वहां से आवाज करेगा, इस तरह से कम्युनिकेट करते थे। तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम को भी अपना इन्वॉल्व कर सकते हैं जहां जहां आपके पास मॉडर्न सिस्टम नहीं है। उसके बाद सायरन पॉसिबल है, आप सायरन बजाते हैं, और कितनी बार जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उस समय सायरन बजाया जाता है कि नीचे, और लोगों को मालूम रहता है कि भाई अब इसका मतलब कि कोई डैम से पानी छोड़ा जाने वाला है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक ट्रेडिशनल और मेथड था हमारे पास, ट्रेडिशनल था क्रायर्स एंड रनर्स एंड क्रायर्स, कि पहले में ऐसा होता था कि एक आदमी जोर से चिल्लाता हुआ, भी बाढ़ आने वाली है या कुछ होने वाला है, वो भागेगा और 200-500 मीटर तक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, वहां से अगला आदमी शुरू हो जाएगा, वो जोर से शोर मचाता हुआ और बोलता हुआ आगे बढ़ेगा, और ऐसे ऐसे करते हुए तो रनर्स एंड क्रायर्स। तो ये ट्रेडिशनल मेथड भी है आपके पास, अभी आपको कोई जोर से अपने भोंपू बजा दिया, रनर्स एंड क्रायर्स है, और उसके साथ साथ एक ये हो गया, और एक तरफ मैंने जैसे बताया आपके पास कम्युनिटी रेडियो भी हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज है आपके पास, सैटेलाइट टेलीफोन। सैटेलाइट टेलीफोन हालांकि बहुत महंगे होते हैं, मगर हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आरबी वगैरह ये सब इसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसकी भी मदद ली जा सकती है। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास है, और मेरा फिर भी ये बार बार कहना है कि देखिए आपदाएं, जैसे अभी सूर्य प्रकाश जी भी कह रहे हैं, आपदाएं तो आएंगी आएंगी, क्योंकि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर आपदा आई, मगर अब ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है नदी के पास आके घर बसा रहे हैं, और ऐसी जगह पे बसा रहे हैं जहाँ पे पहाड़ के कटान हो रहा है, तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि मैं जो जगह जहां घर बना रहा हूं कहीं यहाँ बाढ़ तो नहीं आती है। हो सकता है आप मई महीने में या अप्रैल महीने में एक मकान खरीदने जाएं, बड़ा साफ लगेगा, बिल्कुल साफ, वहां उस समय नहीं पता चलेगा, वही कहते हैं जुलाई के महीने में वहां पानी बह रहा होगा पूरे का पूरा। तो ऐसी जगह पे मत जाइए, और प्रशासन का सब बहुत बड़ा अहम रोल है कि गाइडलाइन बड़ी क्लियर है, नदी से 200 मीटर 500 मीटर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, समुद्र तट से कोई भी होना नहीं चाहिए, तो वो उनका उल्लंघन क्यों हो रहा है, तो सरकारों को चेताना होगा, उनको हटाना पड़ेगा इस तरह से इंक्रोचमेंट जो है, और नहीं, और उनको सेफ जगह पे जगह उपलब्ध कराइए। और ध्यान रखिए ज्यादातर जगहों पे गरीबी मारा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं होते, और वो इन जगहों पे जाके कंस्ट्रक्शन करते हैं और रहते हैं, और फिर बाद में उनको झेलना पड़ता है। तो ये सारी पहलुओं पे ध्यान देना होगा, जब भी हम जो है अपने आप को एक रेजिलिएंट सोसाइटी बना सकते हैं और बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एवरी ईयर वी वर्स्ट अफेक्टेड बाय फ्लड, एंड वी ऑल नो दैट अगेन इन रेनी सीजन इट विल happen. Then why not experts are making permanent solutions to this, and what according to you we can do to overcome from this problem? नहीं, बहुत बढ़िया आपने, ये तो मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैंने तो अखबार में मेरा इंटरव्यू छपा है कि जैसे मैं देहरादून का एग्जांपल दूंगा, विधानसभा आपने नदी में बना दी, आपने यूनिवर्सिटी नदी में बना दी, आपने जो कहते हैं एक मेंटल मतलब लोगों को जो थोड़ा दिमागी रहने की व्यवस्था की, वो भी नदी में बना दी आपने। तो मतलब किस तरह की प्लानिंग चल रही है? वेयर इज द टाउन प्लानर? टाउन प्लानर कहां पर है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? हमें ये देखना है कि जब ये वहां पे असेसमेंट तो कराइए आप, वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट क्यों कराइए? अर्ली वार्निंग का पहला कंपोनेंट है कि किस जगह पे आप जा रहे हैं, क्या वहां बाढ़ तो नहीं आती, कहीं नदी की जमीन एंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे, उस एंक्रोचमेंट वाली जमीन में तो नहीं आप घर बना रहे, फ्लड प्लेन में तो नहीं आप घर बना रहे या बिल्डिंग बना रहे। जब यदि फ्लड प्लेन में आप बनाओगे तो मैंने कहा ही आपको, आप बैल मुझे मार, हर साल नहीं तो कुछ साल के बाद फिर दोबारा बाढ़ तो जरूर आएगी वहां पे, एरिया ही बाढ़ का एरिया है।
कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक बार किसान से बात की, मेरे खेत में नदी आ गई और बाढ़ आ गई, तो मैंने कहा नदी तुम्हारे खेत में आई या खेत तुमने नदी में बनाया? तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद जा जाके वनरेबल एरियाज में रह रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी कि वनरेबल एरियाज और जो एनक्रोचमेंट एरिया है, फ्लड प्लेन एरियाज, वहां पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाए। जब तक वो नहीं करेंगे आप ये आती रहेगी, फिर आप उसको ब्लेम करोगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो बिल्कुल गलत बात होगी। ये बिल्कुल नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कारण ही सारी समस्याएं हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये हमें पता है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वल्नरेबल एरिया से लोगों को हटाएं और सुरक्षित स्थानों पर उनको जमीन उपलब्ध कराएं और वहीं पर वो मकान बनाएं। और जो मकान भी बना रहे हैं पहाड़ों में, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होने चाहिए। बाढ़ से भी बचना है, लैंडस्लाइड से बचना है, अर्थक्वेक से भी बचना है, और जंगल के अंदर घुस के भी नहीं बनाना है जिससे कि जंगल की आड़ में भी फंसे। तो ये सब चीजों को ध्यान देना होगा, प्लानिंग प्रॉपर हो पूरी, उसके बाद ही कुछ एक्शन होना चाहिए, जब ही हम बच सकते हैं। अन्यथा ये प्रॉब्लम अब घटती रहेंगी और लोगों के नुकसान होता रहेगा, जान का भी और मान का। Thank you very much, sir. Thank you. Next question is to Professor Surya Prakash. In hilly terrain nowadays, infrastructure development causes more landslides. How to control it, and who is responsible for those landslides? Anil, your question is complete now. Yes, sir. Okay. Actually, I told you there is a good relationship between development and disaster management. All this infrastructure actually should follow guidelines for safe construction and design, planning and location, which is being ignored by most of these departments. As Dr. Sharma ji has said, कि अगर आप घर ऐसी जगह बना देते और ऐसी तकनीक से या ऐसी सामग्री से जो भूस्खलन से संवेदनशील हो, तो कौन बचा पाएगा? एक हिंदी में कहावत, अपने पैर कुल्हाड़ी खुद मारे तो कौन बचाए, है नहीं? अगर अपनी सहायता करनी है और ऊपर वाले से मदद चाहते तो अपने खुद मददगार बनो। तो अक्सर क्या है कि इन क्षेत्रों में जो भी कार्य हो रहे हैं, यहाँ हमारी सामुदायिक जागरूकता की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है कि जहां कहीं भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हो या विकास हो रहा हो, उसमें आपदा सुरक्षित डिजाइन, लोकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इंक्लूड करके रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। So next question is, what is the role of traditional knowledge in managing disasters, and can drainage structural measures in populated hill areas reduce the probability of landslides? दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग इन दोज एरियाज इज वेरी मच यूजफुल, क्योंकि अगर उस क्षेत्र में आप बहुत समय से रह रहे हैं तो आपको वहां की लोकल भौगोलिक, जलवायु संबंधित, मौसम संबंधित सभी जानकारियां हो जाती हैं और किस तरह की आपदाएं आती हैं उसकी भी जानकारी हो जाती है। तो समाज में जो अपना ज्ञान है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए, ट्रेडिशनल विजडम है, इंडिजिनस नॉलेज है। और इसके अलावा जो आपने ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स वाला कहा कि बहुत सारे भूस्खलन जो ज्यादातर होते हैं, भूकंप के अलावा जो जनित भूस्खलन है वो पानी की वजह से होते हैं। और अगर हम पानी को सही रास्ता दे दें, पानी की एक प्रकृति के वो बहेगा और उसको बहाव का रास्ता मिलना चाहिए खुला और सही, तो संकरा नहीं कर देना चाहिए जिसकी वजह से ज्यादा कटाव होता है। तो हमें पानी को सुव्यवस्थित करना चाहिए। Drainage measures are the best measures for averting landslides or preventing landslides. Thank you very much, sir. I will also take a couple of questions. Someone had asked how the local communities stand in participatory approach framed by national state district disaster management plan. So actually communities had a great role in disaster management, as these people are the most vulnerable, and with knowledge of local circumstances, hazard contest, and the livelihoods option available, local communities can play a major role in managing the risk of this disaster. So we need to enhance the capacity of communities through various awareness generation programs, like Government of India has introduced Abda Mitri scheme. And Abda Mitri scheme, the
aim of Aapda Mitra scheme was to train community volunteers with skills that they would need to respond to their community's immediate need after the after any disaster. And second question was regarding the disaster management cost due to increasing population. Actually, due to increasing population, we are heading towards more vulnerable areas, and due to haphazard land use planning and construction activities to meet the necessity of key infrastructure and other essential services without taking consideration of hazards profile of that area, we are exposing more number of people to the window of disaster vulnerability. So in this way, increasing population is also present, presenting challenges in managing these disasters. That's all for the question answer session. On behalf of National Institute of Disaster Management and Uttarakhand Academy of Administration, I take this opportunity to thank our distinguished speakers, Shri Anand Sharma, Dr. Rajendra Singh, and Professor Surya Prakash for sharing their valuable experiences and expertise on different facets related to disaster management. Thanks to all the experts.